प्रिपरेशन में एंजॉयमेंट प्रिपरेशन में एंजॉयमेंट मेरा सवाल ये है कि चूंकि आप लोगों ने कई सारे अटेम्प्ट दिए हैं, 3 4 5, तो अटेम्प्ट गिनने में तो 4 5 होते हैं, पर ये 4 5 साल होते हैं। तो जब फेल करते हैं तब कहाँ पे समझ आना चाहिए कि या तो हमसे ये हो सकता है या हमसे नहीं हो सकता है। I am thinking, should I go for masters while preparing for UPSC? The type of journey it is, it is a type of marathon. It is. So should I go for my masters or should I dedicatedly focus on UPSC preparation? So let us all get ready for the toppers Q&A. Hello everyone. I would like to congratulate every one of you, and I'm so glad to see all of you here as I am an UPSC aspirant myself. And I would like to ask this one very question which I am facing, that how to maintain the consistency throughout the studies, mostly every time, like the consistency and the patience during. I'm just starting aspirant, and I'm facing a lot of issues in maintaining the consistency thing, so I would like to know that. So there are two ways to go about it. The first thing that is going to motivate you to be consistent is the reason as to why civil services. If you don't have that reason, wo consistency nahi aayegi. And that is something very internal. That is something that is very personal, individualized. The second definitely is the external motivation. So, for example, preparing a timetable. I made a timetable, and at least for 7 to 8 hours every day I tried to study something, and I was very particular about the timetable. So, if I had to wake up at 7 o'clock, I will wake up at 7 o'clock. So that is something external motivation. Apart from that, definitely my family, my mother, my friends helped me to keep me motivated. In the third attempt, I had already decided I will not continue with this preparation. I was so demotivated. I thought this is not for me, but it was my friends, my mother, who supported me, who showed that confidence in me. So I believe there are two things. The first is definitely as to why civil services, because let me tell you, this is not the only career option. There are plenty of career options. So go for something because you are passionate about. We are all here because we had that reason as to why civil services, and that would be your answer. It cannot be anybody's answer, right? So internal motivation and definitely external support. Thank you. हेलो ऑल टॉपर्स, माई सेल्फ प्राची पांडे. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम करंट अफेयर्स के लिए सुनते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो और मंथली मैगजीन पढ़ो, बट जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और मे बी आप लोग के साथ भी हुआ हो कि हर मंथ की मंथली मैगजीन को कवर करना प्लस उसके कंटेंट को याद करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो कैसे इसको कवर करें? लाइक न्यूज़पेपर तो सब बोल देते हैं कि न्यूज़पेपर से कर लो, तो आप लोगों ने कैसे किया था? I think, I mean, I know it's very cliche, but newspaper is very, very key at all stages of the exam because उससे आपकी खुद की भी critical analytical skills बनती हैं और आपको flow पता होता है कि क्या चल रहा है. It's so when you read it in a aggregated form, in a form of monthly magazine या आप जो भी पढ़ रहे हैं 365 टाइप का कोई मटेरियल पढ़ रहे हैं at the end of the year जो आता है, तो you know कि अच्छा these things were going on. It's not something very foreign to you. विद रिस्पेक्ट टू उसको बार बार मतलब कैसे करना है, अल्टीमेटली इट्स द मोस्ट बोरिंग थिंग दैट इज टू रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो आई वुड से वन करंट अफेयर्स सोर्स जो भी आप मैगजीन यूज कर रहे हैं एंड न्यूज़पेपर एवरी डे एंड मल्टीपल रिविजन्स बिफोर द एग्जाम, एटलीस्ट 2 रिविजन्स बिफोर द एग्जाम और 3 रीडिंग्स बिफोर द एग्जाम. एंड आई थिंक वो होगा. आपको कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स में ज्यादा ग्लिच आ रहा है, किसी सब्जेक्ट में आ रहा है, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि वो स्पेसिफिक चीजें अगर याद नहीं हो रही है और आपको लग रहा है वो पूछा जा रहा है बार बार, तो दिस कैन बी डन, बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू रीडिंग एंड री रीडिंग. Hello, thank you for the latest session. So, I am Nazia Paveen, pursuing BA Political Science in LSR. So, my question is that why in college, when we try to prepare for competitive exam, so somehow we compromise our like college studies, which may help in our optional. To how to balance it, because I'm facing this situation to how to balance both of these, because we have assignment, presentation, all the stuffs, and we have to prepare for that exam also. So it is a very dilemma that how to cope up with that thing. Hello, I'll answer that. I started my preparation during the third year of college. Lekin fortunately, COVID happened after that, so I got a free year. कि 1 year मिल गया था during my mains. However, one suggestion would be that कि आपका जो
पॉलिटिकल साइंस है आई assume. तो पॉलिटिकल साइंस you'd be probably taking that as an optional. और ऐसा नहीं है कि कॉलेज में जो चीज़ आप पढ़ते हो वो बाद में यूज नहीं आएगा. मैंने CBCS में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स लिए जो UPSC ओरिएंटेड नहीं थे, लेकिन that helped me in SA का, then GS4 का. So always एक माइंड में ये हमेशा ये मत रखिए आप कि बस UPSC ही है. कॉलेज एक एनवायरनमेंट है, वहां से बहुत सारा चीज आपको एक UPSC के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाने में हेल्प करता है. जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, SA क्लब, डिबेटिंग सोसाइटी, कल्चरल क्लब्स, ये सब में आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये सब आपको बाद में एक अपना एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो लास्ट स्टेज है इंटरव्यू, इसमें भी हेल्प करता है. आप ये मत सोचिए कि जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये एग्जैक्टली जो सिलेबस है उससे कोलेट नहीं कर पा रहा है. हेल्प मिलती है, ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज का है वो इज नॉट रिलेटेड टू UPSC एंड ऑल. सो आप हमेशा ये सोचिए कि यार ये इफ इट्स नॉट हेल्पिंग इन मेंस और प्रीलिम्स, इट्स हेल्पिंग इन माय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. तो आप उस पर्सपेक्टिव से जाएंगे ना तो यू लर्न अ लॉट. Hello, sir. Hello, ma'am. I'm Imtiaz. Right now, I am pursuing graduation in political science, and I am in my final year. So, actually, I am in a state of confusion. I am thinking, should I go for masters while preparing for UPSC? Because it's the type of journey it is. It is a type of marathon. It is. So, should I go for my masters, or should I dedicatedly focus on UPSC preparation? That's the question. एक्चुअली व्हाई आई वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन इज, मैंने अपना प्रिपरेशन मास्टर्स में स्टार्ट किया था. सो 2016 तक आई डिड माय बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. फ्रॉम 16 to 18 आई डिड माय मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट. तो नाउ आपके पास दो रास्ते हैं. सी, अगर आपको लगता है आप बैलेंस कर पाओगे मास्टर्स के सिलेबस, मास्टर्स का असाइनमेंट, मास्टर्स के सेमिस्टर और उसमें आने वाला सारा प्रेशर और जो कुछ भी आपको वर्क मिलने वाला है, अगर आपको लगता है आप उसके साथ बैलेंस करके UPSC कर पाओगे तो इट्स वेल एंड गुड, बिकॉज एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ 2 years यू विल हैव एटलीस्ट सम पार्शियल प्रिपरेशन ऑफ UPSC. एट द सेम टाइम यू विल हैव योर मास्टर्स डिग्री इन योर हैंड. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने प्रिपरेशन के साथ साथ इग्नू से मास्टर्स कर लिया पॉल साइंस में. आई डिड नॉट डू दैट क्योंकि मेरे पास मास्टर्स था, बट मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके डबल मास्टर्स हो चुके. नाउ यू हैव टू बैलेंस दैट. अगर आपको लगता है कि मास्टर्स के टाइम में इतना ज्यादा टाइम चला जाएगा कि आप UPSC के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे तो फिर थोड़ा दिक्कत है. देन यू हैव टू थिंक अ बिट. बट ऐसा लगता है कि बैलेंस किया जा सकता है, जो मुझे लगता है बिल्कुल किया जा सकता है, सिंस यू आर टेकिंग मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस और वो शायद आपका ऑप्शनल भी रहेगा, तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू हेल्प यू. इट जस्ट कि थोड़ा सा प्रेशर इस बात पे आएगा कि आप अपना टाइम कहाँ मैनेज कर रहे हो, संडे या सैटरडे ऑफ ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, जब आपको सेमेस्टर ब्रेक मिल रहा है वो आप UPSC के लिए दे रहे हो, नहीं दे रहे हो. थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, बट आराम से हो सकता है. आई कैन बेट ऑन दैट. सर, मेरा नाम फैयाज है. मैं BA पॉलिटिकल साइंस और इसका फर्स्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ. मेरा सवाल ये है कि चूंकि आप लोगों ने कई सारे अटेम्प्ट दिए हैं, 3, 4, 5, तो अटेम्प्ट गिनने में तो 4-5 होते हैं, पर ये 4-5 साल होते हैं. तो जब फेल करते हैं तब कहाँ पे समझ आना चाहिए कि या तो हमसे ये हो सकता है या हमसे नहीं हो सकता है, क्योंकि करियर के ये बहुत अहम उम्र होते हैं बनाने के. उस सिलसिले में आपके बैक ऑफ माइंड क्या होता है कि इसके बाद क्या इन केस नहीं होता है तो? क्योंकि मुझे लगता है सब में सबसे ज्यादा मैं ही फेल हुआ हूँ, तो आई एम द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन. और क्या फेल हुआ हूँ मैं लिटरली. तो पॉइंट इज, एक मेरा दोस्त है नाजिश, ही इज एन IPS. उसका और मेरा इस बात पर डिस्कशन चल रहा था, तो उसकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो मुझे भी लगता है कि सही है. आप अटेम्प्ट डिसाइड कर लो कि मैं ये 3 अटेम्प्ट दूंगा. सो दिस 3 years आई एम गोइंग टू गिव टू UPSC. ये 3 अटेम्प्ट मैं दूंगा, इसमें हो जाना चाहिए. अगर नहीं होता है तो देन आई विल थिंक कि मुझे करना क्या है, वेदर आई हैव टू गो ऑन प्लान B और ये कंटिन्यू करना है या क्विट करना है, जो भी. एंड दैट 3 or 2 दैट कैन बी योर चॉइस. या तो मैं 2 साल दूंगा या 3 साल दूंगा, बट डिसाइड दैट कि क्या करना है. लेट्स से 2 साल हो गए या 3 साल हो गए एंड 3 अटेम्प्ट हो गए एंड स्टिल आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो, तो आप सेकंड थॉट लीजिए कि क्या अब सिंस UPSC में सक्सेस रेट बहुत कम है, लेस देन 0.01%, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से जब आप आते हैं तो यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेकंड प्लान B एज वेल. मेरा मास्टर्स ही मेरा प्लान B था. वो सोचना पड़ता है, यू मस्ट हैव दैट फॉल बैक ऑप्शन. ऐसा नहीं है ना कि आप जाएंगे और आपका एक बड़ा मॉल है जहाँ पे जाके आपको काउंटर पे बैठना है और बस कैश गिनना है. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट. थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेंगे, थोड़ा रियलिस्टिकली सोचेंगे तो हाँ, प्लान B सोचा जाना चाहिए.
बट जब आप, जैसे मैंने बोला, 1 2 3 अटेम्प्ट आपने प्लान कर लिए, उसके बाद थिंक कि क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस, क्या मेरी फैमिली की नीड, बिकॉज आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरा आपका फैमिली एग्जाम देता है। लाइक पीडीएफ में नाम हमारा है, पास हमारी फैमिली हुई है, दैट इज फॉर श्योर, नो वन कैन डिनाई दैट। तो पॉइंट वही है कि यू हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स, यू हैव टू टॉक टू योर फैमिली कि इतना टाइम हो गया, इतने अटेम्प्ट दे दिए, और क्या फिजिबल है आपको अटेम्प्ट देना। ऐसा हो सकता है कि आपको फैमिली वाले बोले कि नहीं, फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देन यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि जॉब लिया जाए। मास्टर्स में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई कॉल्ड माय मदर, बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, जॉब लगा है, लेना चाहिए छोड़ना चाहिए। बट माय मदर वाज सपोर्टिव, क्योंकि 2 3 साल रिटायरमेंट को बचे हुए थे। So there is a need of certain conditions. See, even preparing for UPSC civil services is a privilege. अगर आप कर पा रहे हो, बिकॉज देर इज सर्टन कंडीसिव एनवायरमेंट जो आपको वो अलाउ कर रही है कि आप प्रिपेयर करो, तो मेक श्योर कि वो है, और नहीं है तो आप, अगर आपको ये जरूरत है कि आपकी फैमिली को आपकी ज्यादा नीड है फाइनेंशियली या किसी भी चीज की, इमोशनली, तो फिर ऑफ कोर्स आई से कि दुनिया में किसी चीज से ज्यादा प्रायोरिटाइज फैमिली ज्यादा करनी चाहिए। बाकी आई थिंक दूसरा हो सकता है, तो थोड़ा सा वो रियलिस्टिक विथ थोड़ा सा इमोशनल टच विथ नीड्स, वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेना ज्यादा बेटर रहेगा। इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे मान लिया आई हैव फेल्ड एट एवरी स्टेज, इंटरव्यू, मेंस, प्रीलिम्स, तो कहीं ना कहीं मतलब पर्सनली आई फील कि 3 अटेम्प्ट के बाद आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, कि आगे कंटिन्यू सिर्फ इसी एग्जाम के ऊपर करना है, फिर आप और एग्जाम में एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 2 या 3 अटेम्प्ट सीरियसली प्रिपेयर किया है, मतलब आपने 3.5 साल सिंसियरली इस एग्जाम की तैयारी करी, तो आपका एक फाउंडेशन बन गया है। उसके बाद आपको जरूरी नहीं है कि आप रोज 10 घंटे पढ़ना है, अगर आप 5-6 घंटे भी क्वालिटी आवर्स देते हैं, आई थिंक वो मोर देन एनफ है टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। अब जैसे मान लिया मैं, जब मेरा 3 अटेम्प्ट हो गए, चौथा अटेम्प्ट था मेरा ये, इस अटेम्प्ट में मेरा सिर्फ सोल फोकस यूपीएससी एग्जामिनेशन नहीं था, मुझे भी समझ में आ रहा था कि भाई नहीं हो पा रहा है, तो मुझे और भी चीजें देखनी है, जिंदगी तो आगे बढ़ानी है ना। तो मैंने अब साथ में और भी एग्जाम दिए, जैसे एग्जामिनेशन था अभी एग्जामिनर ऑफ पेटेंट, इट इज अ जॉब अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ग्रुप ए जॉब है। तो अभी मेरा यूपीएससी भी चलता रहा साथ में, और मैंने इस एग्जाम, ये वाला एग्जाम दिया। ये एग्जाम बेसिकली इट इज अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल एग्जाम था ये पूरा। तो इसका मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू दिया, अभी मैं उसका रिजल्ट अवेटेड हूँ। सो ये है कि अगर आपके 3-4 साल लग गए हैं, तो आप ऑल्टरनेट ऑप्शन एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हमारे 3-4 अटेम्प्ट हो गए, मैं और एग्जाम भी सोचने चाहिए। तो अभी तो बस ये ऊपर वाले क्रम से मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है, बट मैंने उस एग्जाम का इंटरव्यू 11 अप्रैल को दिया है, और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं 5 मई तक आएगा। तो ये भी हो सकता है, क्या पता मेरा उस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए। तो इससे बताना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुझे आता था थोड़ा बहुत, ठीक है ना, क्योंकि मैं उस टेक्निकल एग्जाम का इंटरव्यू देके आया हूँ अभी। तो बस ये कि अगर आप 3 अटेम्प्ट के बाद यू कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शन, अपने साथ साथ तैयारी कर सकते हो। सिर्फ इस एग्जाम के भरोसे 3 अटेम्प्ट से ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं बैठना है, बिकॉज बहुत कंपटीशन है। अब कंपटीशन के साथ इस एग्जाम में 3 चीज चाहिए होती है, दैट इज हार्ड वर्क, दैट इज आई बिलीव इट इज 50%, स्मार्ट वर्क दैट इज 25%, बच्चा हुआ 25% लक है। अब वो लक शायद मुझसे अच्छा तो कोई इस बारे में बता ही नहीं सकता, बिकॉज इस अटेम्प्ट में मेरे बहुत ही ज्यादा हैफाजत रहा है। मैं इस अटेम्प्ट के मेंस में, मुझे बुखार था लिटरली, 102 फीवर में मैंने GS3 GS4 पेपर दिया है। 5 दिन की जो छुट्टी होती है उसमें मैं हॉस्पिटल में था 3 दिन के चक्कर काटने में। इंटरव्यू से 2 हफ्ते पहले मुझे टाइफाइड हुआ है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इस एग्जाम में हार्ड वर्क 50%, स्मार्ट वर्क 25%, 25% लक है। और जब आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना, एंड वी कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स ना। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपना जो आपका काम है वो अच्छे से करिए, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। 3 अटेम्प्ट के बाद वी कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। बाय दैट एक्चुअली अब्दुल्ला आल्सो मींस कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, मैंने अपनी तबीयत भी संभालो, है ना, क्योंकि फिर ऐसा भी हो सकता है। होल प्रिपरेशन के टाइम में एंजॉयमेंट कैसा करना, ये पूछना चाह रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है आप एंजॉयमेंट कैसे करते हो। जैसे मान लिया मेरा था, मुझे खेलने का बहुत शौक है, तो जब भी अपने को ब्रेक मिलता था तो मैं बहुत रेगुलरली खेला। जामिया आरसी में सब फैसिलिटीज थी, मतलब मैंने हर गेम खेला है, टेबल टेनिस, कैरम, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, माफिया, टीटी। जामिया आरसी में एक गेम फेमस है माफिया के नाम से, वो भी खेला है। वो इतना खेला है रात के 10 से लेके सुबह के 5 बजे तक। तो इसलिए वो डिपेंड करता है आप एंजॉय कैसे करना चाहते हैं।
मेरा ये था कि जब भी मुझे पढ़ाई से ब्रेक लेना है, आई यूज्ड टू इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज, मेनली स्पोर्ट्स। ठीक है, आप देखिए कैसे, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है हमें लगता है कि 12 घंटे पढ़ना जरूरी है, बट आई थिंक जरूरी नहीं है, वो 8-9 घंटे भी मोर देन सफिशिएंट है। बट ये जब आप पढ़े 9 घंटे जब पढ़े तो वो सिर्फ पढ़ना होना चाहिए, उस 9 घंटे में कुछ और नहीं। मेरा क्वेश्चन सीसेट को लेके है। मैं ही आंसर लूंगा, बोलो। लास्ट 2 ईयर का जो सीसेट का पेपर है, वो आईआईटी एनआईटी के स्टूडेंट्स को भी पता नहीं चल रहा क्या क्या हो रहा है। हमारी तो मत ही बात करो उसके बारे में। तो उसके लिए क्या करना है, लेकिन टॉपर्स एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि लास्ट के 3-4 मंथ्स आप प्रीलिम्स को दे दो और इससे पहले आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, ज्यादा फोकस मेंस पे करो। तो सीसेट भी थोड़ा डिफिकल्ट है ना, अभी सीसेट ही नहीं होगा तो प्रीलिम्स कहाँ से लिखेंगे, मेंस कहाँ से लिखेंगे? इसीलिए मतलब सीसेट के लिए कैसा प्रिपेयर करेंगे? तो सी एक चीज ये कि अगर आप पीवाईक्यू करते हो सीसेट के लिए, जैसा यूजुअली बोला जा रहा है, आप पीवाईक्यू करके जाओगे ना तो एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हाँ आप उस लेवल पे चले गए। बिकॉज ये हो रहा है ना, हर साल यूपीएससी पिछले साल से थोड़ा आगे जा रहा है। अगर आप उस लेवल तक प्रिपेयर कर, लेट्स से कि 2023 तक आपने प्रिपेयर कर लिया, 2024 का प्रीलिम्स देना है और 2023 तक के पेपर से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आता है, मैथ्स आता है, कॉम्प्रिहेंशन सब आ रहा है, और 24 का पेपर यूपीएससी विल टेक अ स्टेप फर्दर और वो आपको और टफ लगेगा। तो वो एक दिक्कत है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करके सूडो कॉन्फिडेंस, फॉल्स कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, दैट इज फर्स्ट। सेकंड, ज्यादा रिवीजन चाहिए मुझे लगता है। सी मैं कोई आईआईटी या एनआईटी का पढ़ा नहीं हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ इंजीनियरिंग। तो पॉइंट ये है कि डोंट फोकस ऑन सोल मैथमेटिक्स, सोल रीजनिंग या सोल कॉम्प्रिहेंशन। मैंने ये भी गलती की है कि खाली मैथ्स करूंगा, खाली कॉम्प्रिहेंशन करूंगा। तो ट्राई टू फाइंड बैलेंस बिटवीन ऑल थ्री, और इसमें जो सबसे लो हैंगिंग है वो करने हैं। तीसरी चीज, प्रीलिम्स का पेपर देने से पहले, पर्टिकुलरली सीसेट देने से पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सीसेट का पेपर मैं देने कैसे वाला हूँ। जैसे इस बार जब मैंने सीसेट का पेपर दिया था, ये मेरा पहली बार हुआ था कि सीसेट क्लियर हुआ है। मैं 5 बार प्रीलिम्स फेल हुआ तो सीसेट में ही हुआ, जीएस में नहीं हुआ। तो ये बात थी कि मुझे पता था कि पहले 2 मिनट में 80 सवाल देखूंगा, 80 सवाल मेरे आंखों के नीचे से जाएंगे। सेकंड चीज मुझे ये पता थी, अगर पैसेज का साइज लेंदी है, जैसा 2022 में आई गेस हुआ था, तो पैसेज पहले नहीं किए जाएंगे। पैसेज का साइज शॉर्ट टू मीडियम है तो पहले पैसेज किए जाएंगे। अगर पैसेज करने हैं तो सारे पैसेज एक साथ किए जाएंगे और 50 से 55 मिनट में सारे पैसेज हो जाने चाहिए, ताकि वो कॉग्निटिव स्विच ना रहे कि अभी कॉम्प्रिहेंशन किया फिर मैथ्स कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है। तो सारे पैसेजेस हो रहे हैं। अगर वो शॉर्ट टू मीडियम है तो पहले पैसेजेस हो रहे हैं, वो 50 से 55 मिनट में हो रहे हैं। पहले मैंने 80 सवाल देख लिए हैं। उसके बाद लेट्स से कि रेशो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, एज वाले सवाल है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, उसमें देयर आर डिग्रीज ऑफ क्वेश्चन। तो यू शुड नो कि कौन सी डिग्री का क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, कौन सी डिग्री का क्वेश्चन मेरा ज्यादा टाइम खाएगा, कौन से डिग्री के क्वेश्चन के लिए मेरा मैक्सिमम 1 मिनट में चला जाएगा। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन कैलेंडर जहां पे बोला है कि स्पेसिफिक डेट को कौन सा डे है, इट इज गोइंग टू टेक यू 15 मिनट्स। आंसर तो आ जाएगा लेकिन आपका टाइम बहुत चला जाएगा। एट द सेम टाइम अगर वहां पे ये सवाल है कि कौन सा साल रिपीट होगा, दैट्स इजी क्वेश्चन, 20 सेकंड या 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर ये क्लैरिटी माइंड में है तो मैंने इस बार पेपर देते टाइम पहले 80 सवाल देखे थे, पहले कॉम्प्रिहेंशन किया था, मुझे पता था कौन से पैसेज करने हैं, और डिग्री भी पता थी कौन से सवाल की मैथ्स की कॉम्प्रिहेंशन में, कौन से सवाल की कौन सी डिग्री पे मुझे सवाल अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। तो जैसे अजम्पशन के सवाल है कॉम्प्रिहेंशन में, मुझे लगता है कि मेरे गलत होते हैं, तो वो मेरा लास्ट प्रायोरिटी था कि पहले बाकी कंक्लूजन, इन्फरेंस वो सब कर लूंगा, उसके बाद वो किया जाएगा। जो सवाल बड़े हैं, जहां जहां पे मुझे लगता है कि ये 3rd डिग्री का क्वेश्चन है, ये सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन इतना टाइम खाएगा कि मेरा पूरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उस पर डायरेक्ट कट। दिस इज हाउ एंड फॉर इट। 50-55 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन हो गया, 43 अटेम्प्ट किए थे। लीस्ट स्कोर मेरा, आई चेक विद 10 आंसर्स की, लीस्ट स्कोर मेरा 70 आ रहा था, मैक्सिमम अराउंड 90 आ रहा था। तो आई थिंक दिस इज हाउ यू शुड गो। बट हाँ, रिविजन और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स। Good afternoon, everyone. My name is Vaishnavi, and my question is कि आईएएस का एग्जाम के प्रिपरेशन करते वक्त हम टाइम मैनेज कैसे करें मैम? वो हो नहीं पाता है टाइम मैनेज। So I think time management can be done with good planning. तो आप अपनी प्लानिंग को लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, लाइक व्हाट साइकिल, प्रिपरेशन साइकिल में आप कहाँ पर हैं इस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रीलिम्स इज कमिंग, और इफ यू सपोज गिविंग नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स हाइपोथेटिकली, तो आप देख सकते हैं कि अभी 1 साल है प्रीलिम्स तक। दिस इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। योर गोल इज टू, लॉन्ग टर्म गोल इज टू क्लियर द ओवरऑल एग्जाम, गेट योर नेम इन द रैंक लिस्ट। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें अपने प्रीलिम्स और मेंस के जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करना है।
तो ये आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लिया। फिर हम उसको मीडियम टर्म में डिवाइड कर सकते हैं कि चलो इतने महीने में मुझे इतने सब्जेक्ट कवर करने हैं, प्रीलिम्स के 3 4 5 महीने पहले मुझे प्रीलिम्स ओनली फोकस करना है, उसके पहले मुझे ऑप्शनल भी खत्म करना है। दिस इज रफली मीडियम टर्म। एंड देन इट कम्स टू शॉर्ट टर्म कि इस हफ्ते मुझे क्या करना है, इस हफ्ते मेरा रूटीन क्या होगा, और अगर इस हफ्ते का डिसाइड हो गया कि आज मुझे क्या करना है, आज हर एक घंटे में कैसा होगा। तो दिस आई मीन इट इज इजी टू से, बट धीरे धीरे ये ट्रायल एंड एरर के साथ अच्छा होता है। पर आप अपने गोल्स को जितना छोटा डिवाइड करेंगे उतना आपको कंट्रोल फील होगा अपने दिन पे, अपने एफर्ट्स पे। तो आप उसको शॉर्ट टर्म में आप डिवाइड कर सकते हैं कि अच्छा मैं आज सपोज मेरा 1 महीने का गोल है कि मैं पॉलिटी खत्म करूं, तो आप ध्यान दे सकते हैं कि आज मैं पॉलिटी के कौन कौन से चैप्टर पढ़ूंगी, मैं इसका टेस्ट इस हफ्ते के एंड में दूंगी, मैं उस टेस्ट का इवैल्यूएशन कब करूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो डिवाइड योर प्लानिंग इन लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म, गोल्स के ध्यान में रखते हुए, एंड टाइम टेबल बना के पढ़ें, दिन को भी डिवाइड करते हुए। और एक रूटीन आएगा, अगर एक रफ रूटीन कि अच्छा मुझे 7 बजे से पढ़ने बैठना है दिन में टू 5 और 6 इन द इवनिंग, तो आपको पता होगा कि अच्छा सुबह मुझे स्टैटिक पढ़ना है, दोपहर को करंट पढ़ना है, शाम को सी सैट पढ़ना है, जो भी चल रहा है उसको आप रूटीन बना के रखेंगे तो आपको टाइम टेबल बनाने में भी बहुत दिक्कत नहीं होगी। एंड जस्ट टू लाइक काइंड ऑफ गिव अ डिस्क्लेमर ऑल्सो, किसी का टाइम टेबल 100% कभी खत्म नहीं होता है। पीपल आर ऑलवेज डिससैटिस्फाइड कि हमारा रह गया कुछ ना कुछ, वो हमेशा फीलिंग रहती है, इट इज गुड ऑल्सो बिकॉज इट प्रोपेल्स यू टू पुश योर बाउंड्रीज। बट बी सेटिस्फाइड इफ योर रूटीन इज गोइंग वेल, इफ you're meeting 70-80% of your targets, you're on the right path, and हम सबका भी आधे आधे टाइम टेबल करके हो गए हैं, तो आप सबका भी हो ही जाएगा। थैंक यू। My question is how to not be nervous while giving interview, since the questions are unpredictable. So how to overcome my fear while giving interviews? Yeah. So interview में nervousness is very natural. You cannot fight it. You just have to kind of accept it कि सिर्फ मैं nervous नहीं हूँ, सब nervous हैं, and it's you just have to kind of keep your calm. So इंटरव्यू में जाने के पहले क्या होता है कि वी हैव टू वेट इन द वेटिंग रूम टुगेदर, एंड देन इंटरव्यू शुरू होने के 5 मिनट पहले दे कॉल यू जस्ट आउटसाइड द डोर एंड यू हैव टू सिट अलोन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, कभी वो 5 से 20 मिनट कितना भी हो सकता है, एंड दैट इज आई थिंक द मोस्ट नर्व रैकिंग टाइम। तो देन यू कैन, आई डोंट नो, आई यूज्ड टू काइंड ऑफ प्रे, एंड वो भी थोड़ा वैसा माइंड नंबिंग प्रेइंग कि आई यूज्ड टू जस्ट से द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन इन माय हेड। यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, यू कैन सिंग अ सॉन्ग, आई डोंट नो, सबका अपना अपना होता है। whatever does not allow you to focus on the result, just focus on the flow of the things. Yeah. फिर आप अंदर जाते हैं and they ask you questions and it might happen that the interview goes downhill. Even for me this time, I came out and I felt my interview went very bad. I felt कि मुझे एकदम रैगिंग जैसी शायद कुछ हो गई है, and आपको टाइम का भी पता नहीं चलता है, so you don't know कि छोटा जा रहा है बड़ा जा रहा है इंटरव्यू, you can't assess at that point of time. So in that point of time, it's just to focus on the person and the question being asked. One question at a time आप लें, आप छोड़ दें कि मैंने पिछला सवाल में I don't know बोल दिया, वो question चला गया, I should have known, just let it go. Just look at the eyes of the interviewer and just answer the question at hand. And I think fake it till you make it also. Like there were times when I just said, I'm sorry again and again, but I just made sure कि I smiled when I said it. या फिर if they told me the answer and I just said I just smiled and said thank you. So your face does not show how fearful you're feeling, and I think it kind of tricks them temporarily. It tricks you into feeling more confident. So it's a slow process, and वो पता नहीं क्या जज कर रहे हैं, but I think it's every one moment at a time लेके आप चलिए तो हो जाएगा. Hello, ma'am. We have some online students. Harshit Rana is asking how to manage answer writing with job in weekends. Answer writing is weekends answer writing enough or not? He's actually asking how to manage answer writing with his job and how to manage it. I think again the answer will depend on the person to person कि enough है या नहीं है, and that you have to analyze for yourself. But again, the good thing is maybe you take a test series from a coaching. What happens is that you get a time frame, you have to write answers, you have to upload the answers, and you get a feedback. And the feedback you get will tell you whether it is sufficient for you or not. Again, it is not the only parameter, but it is a very important parameter which shows you the guideline कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो.
And answer writing is something I really feel that mains का जो part है, that is going to a very large extent decide whether you are going to be in the list or not. Because mains आपके control में होता है. Interview again is something very subjective. आप नहीं जानते कैसा होगा क्या होगा. But mains में आप practice कर रहे हैं, आप बार-बार practice कर रहे हैं, अपने answer writing improve कर रहे हैं, तो आपके marks ज़्यादा आने के बहुत high chances होते हैं. तो I would say कि खुद के लिए practice कीजिए, एक time frame बनाइए, एक test series ले लीजिए, उसको एग्जाम लाइक कंडीशन में लिखना होगा. ये नहीं कि अगर वो 3 घंटे की टेस्ट है तो आप उसको 5 घंटे में लिख के सबमिट कर रहे हो, तो दैट यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योरसेल्फ. तो एग्जाम लाइक कंडीशन में बैठ के लिखिए, सबमिट कीजिए, अपने मेंटर्स को दिखाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, गेट द फीडबैक एंड देन यू विल रियलाइज कि आप किस ट्रैक पर हैं. थैंक यू. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैम काफ़ी लोगों के मिक्स ओपिनियंस है इसके रिगार्डिंग कि आप अगर एनसीईआरटी स्टार्ट करते हो तो मैम ज़रूरी है कि वो 6 से पढ़नी है. मैम कोई कहता है कि ज़रूरी नहीं है 6 से पढ़ना, आप आगे से स्टार्ट कर सकते हो, कोई कहता है स्किप भी करना है. और मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आप कॉलेज में ऑलरेडी हो तो मैम आपको कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, मिनिमम कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैम कॉलेज में आप ऑलरेडी काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो और आपने सर ने ऑलरेडी कहा कि इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी रहना चाहिए क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. तो मैम कितना टाइम मिनिमम देना चाहिए इन चीज़ों के लिए? See, none of us prepared for civil services while in college. And अगर मैं honestly आपको बताऊं तो I feel like college is that time where you develop yourself. For me it was. तो मैंने उस time और कुछ नहीं किया, मैंने college enjoy किया है. And when I say enjoy किया है, I participated in lot of activities. I did my जो भी course work था. Because at the end, your graduation, the subject you are graduating it, that should be strong. आप अगर UPSC भी कर रहे हैं, interview में पहुंचेंगे, आपने कोई optional ले लिया, but आपके graduation के subject से सवाल है, आपको पता ही नहीं है. That will give a very wrong impression. Our first year में है, my only suggestion is कि have fun, enjoy that whatever you are studying. जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए. Side by side, if you are very passionate about civil services, कुछ basic चीजें start कीजिए. For example, newspaper reading, वो भी एक habit है. I'm saying it is a habit. आप first day आप हिंदू उठा के बैठेंगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा जाएगा. At least मुझसे नहीं हुआ था. It took me 6 months to start the reading newspaper. उससे पहले मैं सिर्फ सुडोकू solve करती थी. So develop that habit of reading newspaper. NCERTs again, I would say वैरी करता है आपका अभी लेवल क्या है नॉलेज का. इफ यू फील लाइक कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आप 6 के पढ़ लीजिए, 7 के पढ़ लीजिए. अगर आपको लग रहा है आपका बेसिक सही है, आपको थोड़ा ऊपर थोड़े एडवांस लेवल पे जाना है, आप 11-12 का पढ़िए. NCERTs are important, but they are not sufficient. आपकी फाउंडेशन बनाने के लिए NCERTs important है. A few NCERTs, particularly geography के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं 11-12 के लिए, तो geography के लिए मैं वही पढ़ती हूँ. But apart from that, there are certain static books जो आपको पढ़नी पड़ेंगी. बट आप अभी कॉलेज में हैं तो फर्स्ट थिंग योर प्रायोरिटी शुड बी कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप उसको अच्छे से कर रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो. साइड बाय साइड न्यूज़पेपर रीडिंग एंड बेसिक NCERTs book. Thank you. Quite insightful, ma'ams and sirs. Thank you so much for guiding all of them with really, all that you have had in your preparation, during your preparation. Thank you so much, sirs. Please proceed to your seats.